Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to read a grammar topic, subject verb agreement. What is subject verb agreement? In a sentence, there is a link between subject and verb, and that link is called agreement. Okay? An agreement, a situation according to which in a sentence verb comes according to subject. For example, I am your friend. This is a sentence, and again I am taking another sentence. They are my friends. All right. In these sentences, we can see that this is verb. In this sentence, am is verb. In this sentence, are is verb, and it is coming according to its subject. Here we can see the subject is singular, so here verb is singular. Here subject is plural, so verb is plural. So the verb is coming according to subject. That is subject verb agreement. Here we can see that these are pronoun. We know this is first person, we know this is third person. So this is the situation of pronouns. And one more sentence. The boy is playing. One more sentence. The boys are playing. What can we see here? Here we are seeing that the boy is singular noun, the boys plural noun, and here verb is singular, here verb is plural, because verb is singular because subject is singular. Verb is plural here because subject is plural here. So what does it mean? It means that in a sentence, verb comes according to the person and number of the subject. All right? So let's write it. In a sentence, verb agrees with मतलब comes with person and number of the subject. That is called subject verb agreement. All right? One more sentence I want to explain you. Like we say, I do not like tea, and he does not like tea. These are the two sentences where I is subject and he is subject, and we can see that both are singular. I is singular, he is singular, but here we are taking do, here we are taking does. This change occurred because the pronoun, here pronoun is first person, here pronoun is third person. So verb agrees with person and number of the subject. All right? So this is the definition and this is the concept of the subject verb agreement. Now we are going to read this topic rule by rule. What happens if we have some connectors? क्या होता है जब हम कोई कनेक्टर ले लेते हैं एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ? कनेक्टर्स होते हैं जैसे कि एंड, और,
but, as well as together with, not only but also, either or, neither nor, इनकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं. कभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, कभी सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है. सो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट कनेक्टर and we are to read it through rules that by which connectors what happens. किस कनेक्टर की वजह से सब्जेक्ट सिंगुलर रह जाता है, प्लूरल रह जाता है, या अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है सेंटेंस में तो क्या होगा, किसी कनेक्टर में सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, किसी कनेक्टर के साथ सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. वो सब हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, I want to tell you about the rule of AND. Rule number 1 of AND means AND एक कनेक्टर है. आप अच्छी तरह जानते हो, लाइक आई से राम एंड श्याम. इसका मतलब क्या हुआ, राम एंड श्याम मीन्स हियर द सब्जेक्ट इज प्लूरल. राम एंड श्याम आर मोर देन वन पर्सन. तो हम क्या करेंगे, आगे जो वर्ब आएगी वो आएगी जैसे प्लूरल ही आएगी. वर्ब, वी नो दैट वॉज इज सिंगुलर वर्ब, were is plural verb. Ram and Shyam were waiting for you. ये हमें पता है. Now we are able to solve this because we know the meaning of end. हमें end का मीनिंग पता है. ये कनेक्ट कर देता है एक से ज़्यादा लोगों को या चीज़ों को, और प्लूरल वर्ब आती है इसके बाद, ये हम जानते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें कनेक्टर्स के मतलब पता हो देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू रिकॉग्नाइज द वर्ब विल कम सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है. नाउ अब इसी में एक रूल है, जैसे कि एक सेंटेंस में आपको बताता हूं पहले. जैसे कि एक सेंटेंस है, ब्रेड and butter dash my Sunday breakfast. मतलब ब्रेड बटर मेरा संडे ब्रेकफास्ट है. नाउ अब ये दो सब्जेक्ट हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, बट इट इज गिविंग आइडिया ऑफ अ सिंगल फूड, सिंगल ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेड होता है, उसके ऊपर बटर लगाते हैं, खाते हैं. इट हैज बिकम वन थिंग. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक हियर सिंगुलर वर्ब. हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें मिलकर एक हो गई, राइट. तो अब ये सिचुएशन ऐसी है कि एंड लग गया दो सब्जेक्ट के साथ, लेकिन फिर वो एक ही बन गई, वो एक ही चीज बन गई. तो इस सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, राइट. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, टू थिंग्स, या थिंग्स भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है. हम ले सकते हैं टू नाउन्स. connected by and but giving one idea. दो चीजें हैं, दो पर्सन हैं, दो प्रोनाउन हैं, कुछ भी, अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं एंड से, लेकिन वो एक ही चीज का, एक ही पर्सन का आइडिया हमें दे रहे हैं, तो क्या होगा, फिर हम लेंगे सिंगुलर वर्ब. ऑलराइट.
ये हो जाएगी सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? अब जैसे ही मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, इसी में और क्या हो सकता है। जैसे इसी में और सेंटेंस क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे हॉर्स एंड कैरिज डैश एट द डोर। घोड़ा गाड़ी गेट पर खड़ी है, गेट पर है। तो हियर हॉर्स एंड कैरिज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, इट इज अ व्हीकल। ये एक व्हीकल है, घोड़ा गाड़ी। तो हम क्या बोलेंगे, हॉर्स एंड कैरिज इज एट द डोर। सिंपल। ओके। तो यहां पर चीजें दो हैं, बट वो एक सिंगल चीज बन रहे हैं, वो एक सिंगल आइडिया हमको दे रहा है, तो वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। राइट? अब इसी एंड वाले रूल में एक और रूल हम पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। देखना, दो सेंटेंस है। द डांसर एंड द सिंगर। एक तो है ये द डांसर एंड द सिंगर, एक है ये सेंटेंस अभी पूरा करेंगे हम। एक सेंटेंस है द डांसर एंड सिंगर। कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेजेस? ये जो दो मैंने सेंटेंसेस के पार्ट लिखे हैं अभी तो केवल, इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है हमको? इसमें डिफरेंस एक है, द डांसर, द डांसर, द सिंगर, सिंगर। यहां पर द नहीं है, ऊपर द था, यहां पे द नहीं है। यानी कि जो सेपरेट सेपरेट नाउन है उनके साथ द है सेपरेट, लेकिन यहां पर दोनों नाउन्स के साथ द नहीं है, एक ही नाउन के साथ द है। तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि देखो, मैं सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूं। मतलब कि डांसर और सिंगर आ गए हैं, ऐसा मैं सेंटेंस बनाना चाह रहा हूं। तो अब होगा क्या, इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हैज सिंगुलर्स के साथ लगता है और हैव प्लूरल्स के साथ लगता है। राइट? तो अब देखना क्या होगा, यहां पर मैं लगाऊंगा हैव और यहां पर मैं लगाऊंगा हैज। मतलब कि यहां पर ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और नीचे ये सिंगुलर है हैज, इसका मतलब ये सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है। मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हेन वी आर टेकिंग द सेपरेटली विद नाउन्स, it is talking about two different person. One person is dancer, one person is singer. मतलब जो डांसर है और जो सिंगर हैं वो आ गए हैं। और सेकंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, द एक ही बार है, मतलब कि एक ही पर्सन डांसर भी है और सिंगर भी है। यानी कि वो पर्सन जो डांसर है और सिंगर है वो आ गया है। ऑलराइट? सो इफ यू आर टेकिंग द एडजेक्टिव और डिटर्मिनर मीन्स द, माय, इस तरह के वर्ड हो सकते हैं। अगर ये नाउन के साथ सेपरेटली लगे हुए हैं तो वो प्लूरल होगा, और अगर वो आर्टिकल, वो एडजेक्टिव अगर एक ही बार आया है, दो बार नहीं आया है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। एक ही पर्सन में दो क्वालिटीज़ हैं, डांसिंग की, सिंगिंग की। ठीक है? जैसे मैं बोल सकता हूँ माई नेबर एंड माई बेस्ट फ्रेंड आर कमिंग। ठीक है? यानी कि मेरा जो पड़ोसी है और जो मेरा दोस्त है वो आ रहे हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं बोलता हूँ माई नेबर एंड बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग। यानी कि एक ही पर्सन है जो पड़ोसी भी है और बेस्ट फ्रेंड भी है, एक ही बार आया ना माय, तो ये हो गया सिंगुलर। गॉट इट? सो व्हाट इज द रूल? ये रूल ऐसे बनेगा
जैसे कि आपका है द, ठीक है, और फिर आ गया आपका सब्जेक्ट वन, ओके, और फिर है आपका एंड, और फिर है अगेन द एंड सब्जेक्ट टू. Then what will happen? Verb will come according to then we will take plural verb, okay, because here subject one is different and subject two is different, so we'll take plural verb, okay. और अगर ऐसा हो कि द केवल एक ही बार आया और फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट वन, देन एंड, देन सब्जेक्ट टू, ठीक है, द, फिर सब्जेक्ट वन, फिर एंड, फिर सब्जेक्ट टू, तो ये हो जाएगा सिंगुलर और वर्ब हो जाएगी हमारी सिंगुलर. ऑल राइट, गॉट इट. दैट इज आवर रूल नंबर 2 ऑफ रूल नंबर 1 एंड, है ना. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड सिचुएशन ऑफ एंड. हमारी थर्ड सिचुएशन है एंड नॉट. एंड नॉट क्या होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं राहुल एंड नॉट आई डैश free for this work. ये सेंटेंस कुछ ऐसा बोल रहा है, एंड नॉट का मतलब है जैसे आई, राहुल एंड नॉट आई, इसका मतलब है मैं नहीं राहुल. इसका मतलब कुछ ऐसा ऐसा निकल सकता है, मैं नहीं राहुल, राहुल एंड नॉट आई डैश फ्री फॉर दिस टास्क. हम ऐसा ही बोलते हैं, मैं नहीं राहुल फ्री है, यानी कौन, राहुल फ्री है, मैं नहीं. सो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, ठीक है, और सब्जेक्ट वन हमारा राहुल है, तो राहुल के साथ इज आएगा कि एम, राहुल के साथ आएगा इज. राहुल एंड नॉट आई इज फ्री फॉर दिस टास्क, ठीक है. तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वन, देन एंड नॉट, फिर हो गया हमारा सब्जेक्ट टू. तो अब क्या होगा, अब ये होगा वर्ब विल कम according to, verb will come according to subject 2, sorry subject 1, verb will come according to subject 1. My parents and not my brother was in the ground.
मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरा भाई ग्राउंड में था। माई पेरेंट्स एंड नॉट माई ब्रदर वर इन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे इसी सेंटेंस को अगर उल्टा कर दे तो माई ब्रदर एंड नॉट माई पेरेंट्स वॉज इन द ग्राउंड। मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरा भाई ग्राउंड में था। ठीक है, सो दिस वॉज द रूल ऑफ एंड नॉट। ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट रूल। तो ये एंड वाले रूल में हमने 3 रूल पढ़े जिसमें एंड आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल वो होगा हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, ये रूल ऐसा है कुछ जैसे कि हम बोले, एक सेंटेंस में आपको बताता हूं पहले, वन ऑफ माई अंकल्स डैश। अच्छा एक बात है, वन ऑफ माई अंकल्स का मतलब क्या हुआ? मेरे बहुत सारे अंकल या मेरे अंकल्स में से एक अंकल, शायद इसका मतलब यही हुआ। वन ऑफ माई अंकल्स का मतलब है मेरे जो अंकल्स हैं उनमें से एक अंकल। अब वो एक अंकल क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? वो एक अंकल है सिंगुलर। ठीक है, जिसमें बोलना चाहता हूं गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मेरे जो बहुत सारे अंकल्स हैं उनमें से एक अंकल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इट विल टेक हियर इज, वन ऑफ माई अंकल्स इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। सिंपल। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास होगा वन ऑफ, फिर होगा हमारे पास कोई प्लूरल नाउन, राइट? फिर होगा हमारे पास कोई प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन हो ही नहीं सकता वन ऑफ के बाद, प्लूरल नाउन ही होगा। ठीक है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, देन वी विल टेक सिंगुलर वर्ब बिकॉज इट हैज बिकम सिंगुलर नाउन। ठीक है, वन ऑफ माई अंकल्स, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बुक्स में से एक बुक, बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा, बहुत सारे अंकल्स में से एक अंकल, बहुत सारी सिटीज में से एक सिटीज, वन ऑफ राजस्थान सिटीज, यानी कि वन ऑफ सिटीज ऑफ राजस्थान। तो सिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जितनी भी सिटीज हैं उनमें से एक सिटी, जैसे कि मैं लिखता हूं इसको, है ना, वन ऑफ द बुक्स, बीन मिसप्लेस्ड, बहुत सारी बुक्स हैं उनमें से एक बुक मिसप्लेस हो गई है, किसी ने गलत जगह रख दी है, मिल नहीं रही है। तो हैज एंड हैव, वी हैव 2 वर्ब्स। So has is singular, have is plural. So we will take here singular verb, has. One of the books has been misplaced. All right. This is the rule of one of. Now we are taking another rule, that is rule of as well as, together with. ठीक है, देखो नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 3। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारे पास कुछ कनेक्टर होते हैं, जैसे कि मैं लिख के बताता हूं आपको, टुगेदर विद, along with, in addition to, besides, all right,
एज वेल एज, ये सब क्या है, ये सब के सब कनेक्टर्स हैं, और लगभग इन सभी कनेक्टर्स का मतलब होता है के साथ साथ, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज का मतलब जैसे कि। तो ये कनेक्टर होंगे हमारे साथ, ठीक है। ये कनेक्टर में से कोई भी एक कनेक्टर हो सकता है हमारे सेंटेंस में। अब होगा क्या, इसके पहले होगा एक सब्जेक्ट 1, ठीक है, फिर ये कनेक्टर आ जाएगा, फिर आएगा हमारे पास सब्जेक्ट 2, ठीक है। सब्जेक्ट 1 होगा, फिर एक कनेक्टर आएंगे, फिर सब्जेक्ट 2 आएगा। तो क्या होगा, चलो एक सेंटेंस में देखते हैं। ऑल फ्रेंड्स एज वेल एज, मैं एक कनेक्टर कोई सा भी ले सकता हूं इसके साथ, कोई सा भी, तो मैंने एज वेल एज ले लिया, ठीक है। ऑल फ्रेंड्स एज वेल एज रीना डैश एंजॉइंग द ट्रिप। मतलब मैं सेंटेंस को जैसा बना रहा हूं, आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ सेंटेंस लाइक, जैसे रीना वैसे ही सारे के सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे। तो अब मैं इसको लिखूंगा क्या, मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, ऑल फ्रेंड्स एज वेल एज रीना डैश एंजॉइंग द ट्रिप। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, देखो, सब्जेक्ट 1 ऑल फ्रेंड्स एज वेल एज इज कनेक्टर एंड रीना इज सब्जेक्ट 2, करेक्ट है ना। All friends subject 1, Reena is subject 2. And what we are doing? We are going to take verb according to subject 1. ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब आएगी मैं ऐसे लिखता हूं, देखो समझने की कोशिश करना। वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, ऑलराइट। तो यहां पर सब्जेक्ट 1 क्या है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो यहां पे हो जाएगा वर्ब। ऑल फ्रेंड्स एज वेल एज रीना वर एंजॉयिंग द ट्रिप। अब ये रीना के साथ तो वॉज आना चाहिए, रीना के साथ वर आ रहा है, ये वर जो है वो रीना के साथ नहीं आ रहा, ये वर आ रहा है ऑल फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यहां पर रीना न्यूट्रल है, हम तो बोल रहे हैं जैसे रीना वैसे ही सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, हमेशा थोड़ा ना बोलेंगे जैसे रीना वैसे ही सारे दोस्त एंजॉय कर रहा था, गलत हो गया ना। तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, दैट इज द मीनिंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही together with his parents together with his parents, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था, ऐसे बोलते हैं ना हम, वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था। he together with his friends was going, यही तो बोलेंगे ना हम, वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स वॉज गोइंग। अब ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है हिज पेरेंट्स, और सब्जेक्ट 1 ही है, हमने ले लिया वॉज, क्योंकि वर आता है प्लूरल के साथ, ठीक है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे यहाँ पे पेरेंट्स है तो वर लगा दें, नहीं भाई, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ही टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, और इसमें जो मेन वर्ड है वो है ही, सब्जेक्ट 1। सो वी आर टेकिंग वॉज according to this rule and according to the meaning of the sentence, all right. So this is the rule of together with, along with, in addition to, besides, as well as. And I have told you that we should know the meaning of connectors. अगर हमें मीनिंग पता है कनेक्टर का तो 90% चांस है कि हम सही ही करके आएंगे एग्जाम में, ओके।
सो इन दिस पार्ट वी हैव रेड सम रूल्स. ठीक है, आगे हम और पढ़ेंगे.